બધા કેમ છો? મોજમાં? ગુજરાતી બધાને ફાવે જ છે? સરસ. હવે તમે બધા નાસ્તો પાણી કરીને જ આવ્યા છો ને? ભૂખ નથી કોઈને? આજે આપણે બધા કેમ ભેગા થયા છીએ? સેફટીની વાત કરવા માટે. સાચી વાત? પહેલાં તો આપણે એ સમજીએ કે તમે લોકો અહીંયા નોકરી પર કેમ આવો છો? તમે, હું, પૈસા માટે. પરફેક્ટ. ભાઈએ જોરદાર કીધું. શાની માટે? પૈસા માટે. પૈસા ના મળે તો આપણે નોકરી પર આવીએ ના. અને પૈસા કેમ જરૂરી છે? પરિવાર ચલાવવા માટે. હવે દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિનો 15,000 પગાર છે. કેટલો? 15,000 છે, 20,000 છે. હવે મહિનામાં પોતાના ઉપર કેટલો ખર્ચો કરે છે વ્યક્તિ? કેટલો? 3 થી 4,000. હવે વ્યક્તિ 20,000 મહિને લઈને જાય છે કે 15,000 લઈને જાય છે? 3,000 ઓછા કરી દો, 15,000 જે વધે દાખલા તરીકે, એ કોના માટે આપણે કમાઈએ છીએ? પરિવાર માટે. સાચી વાત ને? હવે વિચારો કે માણસ અહીંયા કામ કરતો હોય ને અને કશુંક થઈ જાય તો એ આવકનું શું? બંધ થઈ જાય. હવે જેના નાનકડા છોકરાઓ હોય, સ્કૂલમાં જતા હોય, સાચી વાત ને? કોઈને વાઈફ પ્રેગ્નન્ટ હોય, થઈ શકે. બધા યંગસ્ટર્સ છે અમુક, કોઈના મમ્મી પપ્પા બીમાર હોય તો એમને પૈસાનું શું થાય? બંધ થઈ જાય. ટૂંકમાં આપણે પાછા તકલીફમાં આવી જઈએ. હવે પૈસા ક્યાં સુધી મળવાના? જ્યાં સુધી આપણા હાથ પગ ચાલે છે ત્યાં સુધી. માણસને કોઈ ઇન્જરી થઈ, હાથમાં ફ્રેક્ચર થઈ ગયું, પગમાં ફ્રેક્ચર થઈ ગયું, કંપનીમાં ઘૂસવા દેશે? નહીં ઘૂસવા દે ને. એનો કહેવાનો આશય એ છે કે આપણે જ્યાં સુધી ફિઝિકલી અને મેન્ટલી, કેવી રીતે? મેન્ટલી ફિટ હશું તો જ આપણને નોકરીમાં આવવા મળે. આમાં કોઈને કંઈ ડાઉટ છે? તમે 20,000નો મસ્ત મોબાઈલ લાવ્યો અને પાણીમાં પડી ગયો, સોફ્ટવેર ગયું તો ગયો ને? વોરંટી ગેરંટી ખરી એની કંઈ? કશું ના મળે. આપણે કંઈ પણ વસ્તુ લાવીએ તો એનું વોરંટી કાર્ડ, ગેરંટી કાર્ડ ચેક કરીએ છીએ કે ભાઈ બગડી જશે તો રિપેર થઈ જશે. તમે 20,000નો મોબાઈલ લાવ્યા છો, એની સ્ક્રીન ડિસ્પ્લે તૂટી ગઈ, નવી ડિસ્પ્લે નંખાવા ગયા, ખર્ચો થશે? અને નવી ફિટ કરાયા પછી જૂના જેવી ચાલશે? નહીં ચાલે ને. એટલે વસ્તુ મોબાઈલ માણસે જ બનાવેલી છે. માણસે બનાવેલી વસ્તુમાં પણ જો આપણે ચેન્જ કરીએ છીએ તો એ પહેલાં જેવી ચાલતી નથી. ને આપણું શરીર તો ઉપરવાળાનું બનાવેલું છે ને ભાઈ. એટલે એકવાર ફ્રેક્ચર થઈ ગયો, અંદર પ્લેટો નંખાઈ ગઈ, પગ બદલાઈ ગયો તો ઓરિજિનલ પીસ જેવા થશો? નહીં થાય. એટલે આપણું શરીર બહુ જ મહત્ત્વનું છે. બહુ જ એટલે બહુ જ. એમાં જરાક પણ ઢીલ છોડ તો ગયા. આ ક્લિયર થયું બધાને? હવે શરીરની અંદર हिंदी કોને ફાવે છે? हिंदी બધાને ફાવે છે. तो अपनी बॉडी के अंदर सबसे मेन पार्ट कौन सा है? लीवर. हाँ, लीवर. चलो वेरी गुड. પછી બીજું, दूसरा क्या है? दिल, हार्ट. ओके. और क्या है? अपने आँख. और सब कुछ हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है. लेकिन सबसे पहले बात करें तो क्या आएगा? क्या आएगा? अपना सर. मोबाइल 20,000 का है, पानी में डाल दिया, कुछ काम का फिर नहीं. उसका लीवर भी काम कर रहा है, हार्ट भी काम कर रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन दिमाग गया, सॉफ्टवेयर गया. तो हमारी बॉडी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हमारा सर है ना. और हेड के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हेलमेट. देखो आप सबने सही तरह से हेलमेट पहना है. अभी हेलमेट पहनने में भी एक टेक्निक होता है. अगर आप हेलमेट पहनोगे, आप हेलमेट देखोगे ना तो आगे जो होता है क्या होता है? पिक होता है. ऊपर से कोई भी केमिकल गिरेगा तो हमारी आँख में नहीं जाएगा. दूसरा देखो, इधर थोड़ा सा डिज़ाइन ऐसे होता है कि जो भी केमिकल गिरा आराम से इधर से आगे निकल जाएगा. सही है ना. अंदर ये क्या होता है? ये आपको ग्रिप होता है, इनर हार्नेस होता है. इसका काम क्या है कि अगर कोई भी ऊपर से कोई भी घुस जाता है, अंदर कोई ऑब्जेक्ट घुस जाएगा तो हमारे हेड को टच नहीं करेगा. वो बीच में 1-1.5 इंच की गैप रहती है. सही है ना.
इसीलिए आप हेलमेट को देख रहे हैं, अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग हो या अंदर वाला टूटा हुआ हो या चेन स्ट्रिप टूटा हुआ हो तो हेलमेट को रिप्लेस कर देने का। सही है। ये स्वेट ग्लैंड होता है, पसीना ज़्यादा आता है तो इसके अंदर अपने को थोड़ा सा ज़्यादा काम कर सकते हैं, इसके अंदर सोच लेता है। तो अभी हेलमेट पहनने का सही तरीका क्या है? हेलमेट पहनने का और क्या लगाने का? चेन स्ट्रिप, ये पट्टी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आप हाइट पे काम कर रहे हो, नीचे देखोगे आपका हेलमेट नीचे गिर जाएगा, ऊपर देखोगे हेलमेट नीचे गिर जाएगा। और काफ़ी एक्सीडेंटों में क्या होता है कि बंदे ने हेलमेट पहना होता है लेकिन चेन स्ट्रिप नहीं लगाया होता है, तो जैसे ही बंदा गिरा, बंदे से पहले कौन सा क्या गिर जाएगा? उसका हेलमेट। मतलब क्या है फिर पहनने का? सही है ना। तो ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हेलमेट के बाद नीचे अगर आते तो दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी में? आंखें। आंखें के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? गोगल्स पहनते हैं। सही है ना। अब जब भी काम में हो तो गोगल्स पहनने का, कुछ भी उड़ के आपकी आंख में नहीं आ सकता है। अगर कोई बंदा वेल्डिंग कर रहा है तो वेल्डिंग के गोगल्स या फेस शील्ड पहनना है, उससे आपकी आंख को प्रोटेक्शन पूरा मिलेगा। उसके बाद क्या आता है? नीचे आगे तो हाथ आते हैं। हाथ से पहले अगर बात करें तो हमारा नाक आएगा, है ना, लंग्स आएंगे। यहाँ से हम जो भी श्वास लेते हैं वो कहाँ से जाते हैं? अपने नाक से जाते हैं। देखो, अगर बाहर से आपको गर्मी लग रही है तो अपने को पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे को गर्मी लग रही है, लेकिन कोई टॉक्सिक गैस अगर लीक हो गया है, नाक में घुस गया, लंग में आ गया, तो परमानेंट आपको डैमेज कर सकता है। इसलिए कहीं पे भी अगर कन्फाइंड स्पेस में जाना है तो पहले चेक कर लेना कि वहाँ पे कोई टॉक्सिक गैस नहीं है। उसके बाद क्या आते हैं? हमारे हाथ आते हैं। तो हाथ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हैंड ग्लोव्स। सबसे बढ़िया हैंड ग्लोव्स कौन सा? चलो बताओ मेरे को। सबसे बढ़िया हैंड ग्लोव्स काम के ऊपर प्रोवाइड रहता है। सही है। काम के ऊपर हाँ, सारे हैंड ग्लोव्स काम के हैं, लेकिन आप कौन सा काम कर रहे हो उसके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा हैंड ग्लोव्स आपको यूज़ करना है। अगर वेल्डिंग कर रहे हो तो वेल्डिंग के लिए हैंड ग्लोव्स यूज़ करना है। सही है। आप नॉर्मल अगर कुछ मैकेनिकल का काम कर रहे हो तो उसके लिए कॉटन हैंड ग्लोव्स यूज़ कर सकते हैं। सही है। तो जैसा काम है वैसा अपने को हैंड ग्लोव्स यूज़ करना है। अगर एसिड के साथ काम करना है तो पीवीसी हैंड ग्लोव्स यूज़ करना है। इसलिए कोई भी हैंड ग्लोव्स हर काम में काम नहीं आ सकता है। आपको अपना जो हज़ार्ड है उसके हिसाब से अपने को यूज़ करना है। उसके बाद बॉडी में क्या आएगा? हमारा पूरा बॉडी इंपॉर्टेंट है। आप कवरऑल पहन सकते हो। अगर कोई एसिड के साथ काम करना है तो पीवीसी शूट पहनना है। ठीक है। नीचे जाएंगे तो और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? सेफ्टी शूज़। सेफ्टी शूज़ किसको बोलते हैं? टो में प्लेट आता है। चलो बढ़िया। और क्या आता है? सेफ्टी शूज़ किसको बोलते हैं? इसके अंदर क्या सब लोहे का प्लेट आता है ना सर। हाँ, सेफ्टी रहता है ना। सेफ्टी रहता है, कोई भी टकराने से उंगली को कुछ नुकसान नहीं होगा। सही ना। इधर ये ऊपर से कोई भी चीज गिरी इसके ऊपर में तो अपने उंगलियों को नुकसान ना करे। ओके। देखो, सेफ्टी शूज़ आप सबको पता है क्या होता है। सेफ्टी शूज़, सेफ्टी शूज़ का मतलब सेफ्टी शूज़ ही होता है। उसका दिखावा अगर सेफ्टी शूज़ जैसा है तो नहीं चलेगा। सही है ना। आगे टो कैप आता है, उसके ऊपर कोई भी हैवी लोड गिरेगा तो अपनी उंगलियों को नुकसान नहीं होगा। सही है। नीचे ग्रिप आएगी, आप जल्दी से स्लिप नहीं होंगे। ठीक है। नीचे का जो सोल होता है वो इंसुलेशन होता है उसका। आपने अगर कभी वायर पे गलती से भी पैर रख दिया तो आपको करंट नहीं लगेगा, है ना। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं सेफ्टी शूज़ के, बहुत सारे हैं। लेकिन काफ़ी वर्कर्स क्या बोलते हैं? सर सेफ्टी शूज़ जैसा ही है मैं, कोई फैशन पहन के भी, हाँ, है ना, तो वो नहीं चलेगा। सेफ्टी शूज़ मतलब कि सेफ्टी शूज़। तो आपको सारे पीपीज़ का पता चल गया कि पीपीज़ क्यों हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा बॉडी उतना क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोग काम क्या कर रहे हो? हाइट पे काम कर रहे हो, वर्किंग एट हाइट। तो वर्किंग एट हाइट का अगर हम लोग बात करें तो वर्किंग एट हाइट किसको बोलते हैं? ऊंचाई का काम करना उसको वर्किंग हाइट। ऊंचाई का काम जो करते हैं उसको हम लोग वर्किंग एट हाइट बोलते हैं, वर्क एट हाइट। अभी कितनी ऊंचाई? 1.8 मीटर के ऊपर। बहुत ही बढ़िया भाई को पता है। 1.8 मीटर यानी फुट में बोले तो
6 फुट। कितना? 6 फुट। 6 फुट के ऊपर अगर अपन काम करते हैं तो वर्किंग एट हाइट परमिट लेना जरूरी है, या हम लोग उसको बोलेंगे वर्क एट हाइट। अब 6 फीट या 1.8 मीटर आया कहाँ से, कभी सोचा आपने? कोई साहब ने बोला और आपने मान लिया, ऐसा? कभी सोचा कि ये 1.8 मीटर या 6 फीट के हाइट्स के ऊपर आप काम कर रहे हो तो उसको वर्क एट हाइट बोलेंगे? 2 मीटर क्यों नहीं, 5 मीटर क्यों नहीं, 10 मीटर क्यों नहीं भाई, या 1 मीटर क्यों नहीं? ये 1.8 मीटर क्यों लिया हमने? क्योंकि सर वहाँ से क्या है कि आदमी को दोहराया जाता है कि इतनी हाइट लेंगे, हाँ। अगर आदमी वहाँ से गिरेगा तो कितना नुकसान हो सकता है। हाँ, वो हिसाब से जो हाइट का मैनेजमेंट किया गया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल बताता हूँ। हमारा एक रिस्पॉन्स टाइम होता है। क्या होता है? रिस्पॉन्स या रिएक्शन टाइम। आप अगर सपोज गाड़ी चला रहे हो और सामने कोई भी चीज़ आ गई तो आपने आँखों को देखा, दिमाग में गया, दिमाग ने हाथ को सिग्नल दिया कि भाई स्टीयरिंग को कंट्रोल कर, पैर को सिग्नल दिया कि ब्रेक मार। तो ये इसको क्या बोलते हैं अपन? रिस्पॉन्स टाइम। आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, बैट्समैन ने मारा, आपने आँख ने देखा बॉल आ रहा है, सीधा दिमाग को मैसेज गया, दिमाग ने हाथ को बोला कि भाई तेरे को कैच करना है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्स टाइम या रिएक्शन टाइम। जिसका कम होता है वो कहाँ खड़ा रहता है? स्लिप में खड़ा रहता है, सही है ना? या विकेट कीपर होता है, उसका बहुत ही कम रिस्पॉन्स टाइम होता है, तुरंत ही वो बॉल को देख के तुरंत एक्शन ले लेता है। तो हमारा बॉडी का जो नॉर्मल बंदा होता है ना, उसका रिएक्शन टाइम या रिस्पॉन्स टाइम कितना है? 0.2 सेकंड। कितना? 0.2 सेकंड। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे अपना रिस्पॉन्स टाइम बढ़ता जाता है, ठीक है ना? कोई नशे की हालत में होता है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ता जाता है। इसलिए बोलते हैं कि नशे की हालत में कभी काम पे नहीं आना है। अभी 0.2 सेकंड है, और अगर हम गिने कि 0.2 सेकंड में बंदा कितना नीचे गिरेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो 9.8 होता है, तो 9.8 इंटू यानी गुना 0.2 आप करोगे तो वो आएगा करीबन 1.96, यानी कि 1.8 मीटर के आसपास आता है, यानी कि 6 फीट। मतलब बंदा गिरा, उसके दिमाग को मैसेज गया कि मैं गिरा हूँ, तब तक तो वो 6 फीट नीचे आ गया होता है। कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, जैसे गिरे अपने को पता चले कि हाँ मैं गिरा हूँ, तब तक तो आप कितने नीचे आ गए? 6 फीट आ गए। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए और ऊंचाई से गिरने में जो हज़ार्ड होता है, अपने बॉडी को जो खतरा होता है, जो चोट लगने के चांसेस है, उन सबको गिनते हुए और अपने बंदे की हाइट 6 फीट के भी 6 फीट से ज़्यादा 6 फीट पकड़ के, ये सारे 3-4 पहलू को पकड़ के हमने कितना लिया है? 1.8 मीटर। क्लियर हुआ? इसलिए 1.8 मीटर के ऊपर आप जाते हो तो क्या पहनना जरूरी है? फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस। अभी आप हाइट पे काम कर रहे हो तो वहाँ खतरा क्या होता है? मटेरियल गिरने का, आदमी गिरने का और आदमी गिरने। सही है। देखो, सबसे पहला खतरा क्या है? हाइट से खुद जो बंदा काम कर रहा है वही गिर जाए, ठीक है। दूसरा क्या होता है? जो मटेरियल लेके गया वो गिर। जो मटेरियल हम साथ में लेके गए वो हज़ार्ड है। अगर मटेरियल गिरा, नीचे कोई बंदा है तो उसके ऊपर गिर सकता है। उसके अलावा और क्या खतरा होता है हाइट पे काम करते हो? तो हवा का खतरा होता है, धूप का होता है, चलने में थोड़ा फिसल जाएगा। हाँ, आप हाइट पे काम कर रहे हो तो हवा का खतरा होता है, अगर ज़्यादा पवन है तो भी बंदा गिर सकता है, ठीक है। आप हाइट पे काम कर रहे हो, वहाँ धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो क्या होगा? पानी शरीर में कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, आपको क्या लगेगा? चक्कर आने लगेंगे। आप हाइट पे काम कर रहे हो, वहाँ पे वायर है, इलेक्ट्रिसिटी के वायर है, तो वहाँ पे करंट लगने के चांसेस है ना। तो काफ़ी सारे हज़ार्ड्स होते हैं हाइट पे। इसलिए हाइट पे अगर काम करते तो मैं आपको जो 4-5 पॉइंट बताऊंगा ना, अगर वो आपने ढंग से दिमाग में डाल दिया तो कभी एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। पहला, हाइट पे काम करते हो या जब भी काम पे आते हो तो हमारे पास पूरा पीपीज होना चाहिए, सेफ्टी शूज़, हेलमेट, हैंड ग्लोव्स, ये सब पहन के आपको काम शुरू करना है। दूसरी बात, जैसे ही हाइट पे चढ़ना है तो चढ़ने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सीढ़ी या लैडर, सही है ना। सीढ़ी आपकी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए,
उसके जो स्टेप्स या रंग्स होते हैं वो अच्छे मजबूत होने चाहिए। कभी कभार क्या होता है वो स्टेप्स रंग आपका टूट गया तो बीच में सलिया घुसा देते हैं, वैसा नहीं करना है। सीढ़ी आपकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, उसको 75 डिग्री पे रखना है, ठीक है। 75 डिग्री अपन कैसे निकालेंगे? जो भी लेडर है ना सर, हाँ, उसका चौथाई निकाल दीजिए। बस उसका चौथाई निकाल देना है। मतलब लेडर के अगर दो जो बॉटम होते हैं वो हमारे पैर के पास है, आपने ऐसे हाथ को पकड़ा तो आपका आराम से स्लोप हो गया, उसमें बंदा आराम से चढ़ सकता है। आपने ज़्यादा स्लोप रखा तो भी गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बहुत कम स्लोप रखा, ऐसे रखा तो लेडर पूरी जंप मारेगी, है ना, उसमें भी लेडर टूटने के चांसेस ज़्यादा है, या आप गिर सकते हो। जैसे ऐसे पकड़ने का आराम से आपका 75 डिग्री एंगल हो जाएगा, एक चौथाई आ जाएगी। लेडर आपने देख लिया, उसका कंडीशन अच्छा होना चाहिए। अब कोई भी बंदा पहली बार जब ऊपर चढ़ता है तो नीचे दूसरे बंदे को उसको पकड़ के रखना है। जैसे बंदा ऊपर चढ़ जाए प्लेटफॉर्म के ऊपर, फिर वहाँ उसको बांध लेना है ना, तो कभी लेडर वापस नहीं आ सकती है। उसके बाद लेडर आपका जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उससे 1 मीटर ऊपर जाना चाहिए। कितना? 1 मीटर। 1 मीटर यानी कि 3 फीट। जो आपके जो 3 स्टेप्स होते हैं उतना कम से कम ऊपर होना चाहिए। तो आप जैसे ही ऊपर चढ़ोगे, प्लेटफॉर्म आ गया तो आप आराम से बाजू में जा सकते हैं। अगर वो लेडर का 1 मीटर ऊपर नहीं है, पकड़ने का ही नहीं है, पकड़ने की तकलीफ आएगी, उतरने के टाइम पे आप इमरजेंसी में गिर सकते हो। सही है, तो लेडर आपका सही होना चाहिए। जैसे अब हाइट पे चढ़ गए, अब हाइट पे अगर आपका प्लेटफॉर्म के चारों साइड पे सेफ्टी रेलिंग है। क्या है? सेफ्टी रेलिंग है। टॉप रेल जो हमारे इधर नाभि तक आता है, मिड रेल और नीचे टो गार्ड, ये तीनों है। और आपका जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर कोई भी जगह नहीं है, ठीक है, कोई भी होल नहीं है, तो आपको वहाँ पे आप आराम से काम कर सकते हो। सही है, आपको गिरने का कोई खतरा नहीं है। रेलिंग आ गया, नीचे प्लेटफॉर्म में कोई स्पेस नहीं है, या आप नीचे भी नहीं गिर सकते हो। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, प्लेटफॉर्म में होल होता है, या आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ रेलिंग नहीं होती है, तो वहाँ पे अपन को क्या यूज़ करना है? फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस। फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस। और हार्नेस का जो हुक होता है उसको कहाँ लगाते हैं अपन? सर के ऊपर। अपना जो हेड है उसके ऊपर अपने को हुक लगाना है। अभी ये मेरे को दीजिए आप, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस, पीछे पड़ा हो। हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस। पहले जो आता था, थैंक यू, पहले जो आता था वो क्या होता था? सेफ्टी बेल्ट होता था सिर्फ। सेफ्टी बेल्ट में क्या होता था? सिर्फ एक ही होता ये एक अपना है, ये लेनियड एक ही था। स्केप फुल होक हो गया। ये लेनियर्ड कितना है? दो, अभी एक था, पहले एक था और सीधा बेल्ट था। अब गवर्नमेंट को लगा कि भाई एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो एक के लेनियर्ड कितने किए? 2 किए, ताकि जैसे अब हाइट पे चढ़े इसको लगा देना है, ठीक है। और ये कहाँ? हमारे हेड के ऊपर होना चाहिए। अगर साइड में है और ये बंदा इधर है, अगर गलती से भी उसका पैर स्लिप हुआ तो बंदा कैसे जाएगा? ऐसे टकराएगा, उसको झूले की तरह जाएगा। और सामने अगर वहाँ पे अगर कुछ स्कैफोल्ड का दूसरा पाइप है या कोई स्ट्रक्चर है, कोई बीम है, तो वहाँ पे अपन टच हो जाएंगे, लगेगा, है ना। इसलिए इसको अपने हाइट के ऊपर लगाना है। दूसरा, अगर आपका एक जगह पे खड़े हो तो ये दोनों के दोनों ऊपर लगा के रखने हैं, दोनों के दोनों ऊपर। जैसे अगर आपको मूवमेंट करना हुआ, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो पहले एक को निकालो, आगे जाके एंकर करो, ठीक है, 2 स्टेप आगे जाओ, फिर इसको निकालो, फिर आगे लगाओ। एक लगा हुआ होना, एक कम से कम एक तो लगा होना चाहिए। और काम कर रहे हो, खड़े हो, तो कितने होने चाहिए? 2। अगर आप ज़्यादा हाइट पे काम सीट लेडर पे चढ़ रहे हो तो वहाँ पर भी इसको लगाते हुए चढ़ना है, ताकि अगर बीच में आपका पैर स्लिप हो गया, आपका ऊपर जो बंदा है उसके अगर कुछ गिर गया है ना, चक्कर आ गए, तो ये आपको बचा सकता है। ये इसको आइडिया आ गया। इसके बाद कभी कभार हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर यूज़ करते हैं। क्या होता है वो? रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर। इसका लेंथ फिक्स होता है, आप ज़्यादा
डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकते हो, है ना। एक लाइफ लाइन है, उसमें आपको लगा दिया, फिर आप आगे ज़्यादा या पीछे ज़्यादा नहीं जा सकते हो। अगर आपका मूवमेंट उस एरिया में है ज़्यादा और बार बार आपको निकालना लगाना नहीं है, तो वहाँ पे एक ब्लॉक आता है जिसको हम लोग बोलेंगे रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर, है ना। उसमें क्या होता है कि जैसे बंदा गिरेगा ना तो तुरंत ही लॉक हो जाएगा। अपना जो 4 व्हीलर होता है, 4 व्हीलर में जो सीट बेल्ट होता है, उसको वैसे झटका मारोगे तो क्या होगा, वो लॉक होता है। तो उसमें भी सेम फंडा, सेम कॉन्सेप्ट पे वो काम करता है। आप जैसे रूफ के ऊपर काम कर रहे हो, आगे गए, आपका पैर स्लिप हो गया, तुरंत ही वो वहाँ पे लॉक हो जाएगा। लेकिन उसमें मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर कोई बंदा गिरता है तो वो नीचे नहीं आना चाहिए। सपोज एक रूफ है, रूफ पे आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसे इस साइड गिरे तो पूरा झूले की तरह से गिर घूम के ऐसे आओगे तो नीचे टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या वो लॉक हो गया। लेकिन जो ये डिस्टेंस है, जो लंबाई है 5 मीटर 10 मीटर जो भी हो, तो आप सीधा नीचे आ सकते हो। इसलिए वहाँ पे आपको चेक करके रखना है कि अगर गलती से भी बंदा गिरे तो नीचे नहीं आए, है ना, ये ध्यान रखना है। अभी ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस। इसका इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, आपको पता है कैसे करते हैं? रस्सी है ना, उसमें वो काला धागा है ना, हाँ, वो अगर कट गया है तो रिजेक्ट हो गया। ओके। और इसमें यहाँ पे डेट वेट सब लिखा हुआ रहता है। चलो, इसमें डेट लिखा होता है, चलो बढ़िया है। इसमें ना पूरा लिखा हाँ, हुआ रहता है। यस। और क्या होता है इसके अंदर, आप इसको कैसे चेक करते हो? वो सही होना चाहिए, क्लैंप भी उसका चलना चाहिए, वो जो क्लैंप भी चलना चाहिए। देखो मैं आपको एक सिंपल स्टेप बता देता हूँ। आप जब भी हाइट पे आओ, ये जैसे आप फुल बॉडी हार्नेस पकड़ते हो हाथ में, तो कैसे इसको चेक करना है। सबसे पहले क्या पकड़ना है अपने को, हुक। हुक है ना, एक थंब रूल लेके चलिए, दिमाग में डाल के चलिए कि हुक अपने 2 उंगली से काम करना चाहिए। कितने? ये 2 उंगली से। कितने? 2। ये 2 उंगली से अगर आपने इसको बंद चालू किया तो आप ऊपर हाइट पे काम कर रहे हो तो आपको आलस नहीं आएगा, है ना। आप इजीली उसको काम एंकर कर सकते हो, आराम से मूवमेंट कर सकते हो। काफ़ी बार क्या होता है कि इसमें जंग लग जाती है या जो दूसरा मटेरियल घुस जाता है तो ये हार्ड हो जाता है, सही है ना। ये लॉक आपका ढंग से काम नहीं कर रहा होता है, बंदा ऐसे जोर से दबाएगा फिर वो प्रेस होगा। अब हाइट पे हो, आपको बार बार इसको खोलना बंद है तो वो बंदा क्या करेगा, फिर लगाएगा ही नहीं। इसे चढ़ने से पहले आपको चेक कर लेना है, ये 2 उंगली से काम होना चाहिए। दोनों चेक कर लिए आपने, इसमें कोई जंग वंग ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये स्प्रिंग आपका ढंग से काम करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो इसका मेंटेनेंस करवा देने का, उसके बाद ही यूज़ करने का। उसके बाद क्या आता है अपना लेनियार्ड। लेनियार्ड में इसके अंदर एक देखो, ये ब्लू कलर का पट्टी है, काफ़ी कबार ब्लैक कलर का भी होता है, ऑरेंज कलर का भी होता है। तो वो पट्टी का मतलब क्या है कि कभी ये पट्टी घिस गई, ये जो स्ट्रिप्स होता है वो टूट गया, उसका मतलब कि इसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई, सही है ना। ये आपको लगेगा अभी मजबूत है, मेरा वजन उठा लेगा, लेकिन नहीं होता है। अगर कोई 60 किलो का अगर कोई वर्कर है, कितने 60 केजी का अगर कोई वर्कर है और हाइट से गिरता है ना, तो उसके बॉडी पे झटका लगता है। कितना झटका लगता है? 2 गुना नहीं, 60 केजी का है और हाइट से गिरा तो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? 9.8। 60 गुणा 10, 600 केजी का झटका लगता है। कितना? आपका जितना वजन है उसका 10 गुना। अगर 80 किलो का कोई वर्कर है, गिरा तो 800 किलो का झटका लगेगा। कितना? 800 किलो का। तो ये जो हमारा है, ये 800 किलो झटका ले पाएगा? इसलिए आपको इसको चेक कर लेना है कि अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। ये आपका पूरा लॉक वगैरह पूरा इधर, ये पूरा अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, कहीं से भी टूटा होना नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग कहाँ पे आए? शॉक एब्जॉर्बर। पहले ये था पुराने वाले सेफ्टी बेल्ट में नहीं था। पहले क्या होता था कि अगर कोई वर्कर गिरा, उसका हुक लगा हुआ है, तब भी उसको एक कमर की हड्डी होती है ना, उसमें झटका आता था। कभी कभार हड्डी भी टूट जाती थी। क्यों? क्योंकि 600 अगर 60 किलो का है तो 600 किलो का झटका लगा उसको।
आप समझ के, सपोज कोई बंदा है 60 किलो का है, वो सो गया, उसके ऊपर 10 बंदे उसके जैसे ही सो गए तो उसका क्या हाल होगा? सही है ना? तो ये लगाने के बाद क्या होगा कि जैसे ही आप गिरे, ये तुरंत ही प्लास्टिक जो है वो टूट जाएगा और इसके अंदर जो स्ट्रिप्स है वो धीरे धीरे ओपन हो जाएगी। तो जो 10 किलो का 10 गुना जो झटका था वो कितना गुना हो जाएगा? करीबन 2 गुना। 60 किलो का बंदा है, उस पर अगर 2 बंदे मस्ती में भी मस्ती मजाक करते हैं अपन, तो कुछ होता है उसको? नहीं होता। अपना बॉडी वो झटका सह सकता है, इसलिए ये होना बहुत ही ज़रूरी है। शॉक एब्जॉर्बर, अभी इस पर जो स्ट्रिप है वो काफ़ी बार क्या काम करते करते फट जाती है, तो कोई वर्कर क्या करता है, उसके ऊपर सैलो टेप मार देता है या तार से बांध देता है। वो सही है गलत है? गलत है। वैसा कभी नहीं करना है। अगर आप गिरे तो खुलेगा ही नहीं, इसका कोई मतलब भी नहीं है। सही है? तो ये होना चाहिए। उसके बाद ये जो आपके स्ट्रिप्स है, वो स्ट्रिप्स आपको ढंग से देख लेना है, कहीं से फटा होना नहीं चाहिए। इसका जो सिलाई होता है वो देख लेना है, सिलाई कहीं से अगर निकल गया है तो भी आपका वो लोड नहीं ले पाएगा। ऐसे सारा चीज़ चेक कर लेना है। दूसरी बात, ये जो आइटम होता है ना, उस पर ये स्टिकर आता है, स्टिकर को आपको देख लेना है, इसका मैन्युफैक्चरिंग साल कब का है। 5 साल इसके अंदर लिखा है कि 5 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये तो चीज़ क्या पड़ी पड़ी भी बिगड़ जा सकती है। सही है ना? ये तो प्लास्टिक का है पूरा, पड़ी पड़ी भी पूरा नायलॉन जो भी है वो पूरा डैमेज हो सकता है, तो ये भी आपको चेक कर लेना है। कभी कभार क्या होता है कि ये आपने काम कर रहे थे, सपोज़ काम करने के बाद इधर रखा और कोई प्लांट के अंदर कोई केमिकल लीकेज हुआ, ठीक है, इसके ऊपर एसिड लग गया या दूसरा कोई केमिकल कोई कांटेक्ट में आ गया, तो भले ही दिखने में आपको बहुत बढ़िया होगा लेकिन कमज़ोर हो गया, तुरंत टूट जाएगा। तो ऐसा होता है तो निकाल देना है। आप एक सिंपल फंडा पकड़िए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या सेफ्टी आइटम, अगर उसको झटका लग गया हो या ऐसा कोई केमिकल के कांटेक्ट में आया हो तो उसको रिप्लेस कर देना है। अगर आपका हेलमेट है, आप हेलमेट पे काम कर रहे हो, ठीक है, ऊपर से कुछ चीज़ गिरा, पूरा इम्पैक्ट आया, अच्छा खासा इम्पैक्ट आया, आप हेलमेट निकाला, बोला हाँ बच गया, हेलमेट निकाला, आपका हेलमेट ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ, आपको लगे चलेगा यार मैं इसको पहन लेता हूँ। अगर कल चीज़ उससे छोटी भी कुछ गिरेगी तो क्या होगा? आपका हेलमेट तुरंत टूट जाएगा, क्योंकि अंदर से उसको डैमेज हो गया होता है। इसलिए जैसे अगर ऐसा कुछ इम्पैक्ट आता है तो सुपरवाइज़र को बोलिए कि साहब मेरा हेलमेट पे आप ये चीज़ गिरा था, ये अंदर से कमज़ोर हो गया होगा, आप मेरे को दूसरा दे दीजिए। सही है? तो ऐसे आपको अपना पूरा का पूरा ध्यान रखना है। और कुछ जानना है आपको? आप जब भी काम शुरू करते हैं तो उससे पहले क्या क्या हज़ार्ड है, उसको हम लोग कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या रखेंगे, ऐसे टूल बॉक्स टॉक्स आपको रेगुलर करते रहना है। ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच।